saving bank account, another is current account. Current account is used in the business while saving bank account is used for the domestic purpose. There are some restrictions on saving bank account, but as far as current account is concerned, you may deposit many amounts many times. You may withdraw any amount anytime. Clear? In current account. But as far as saving bank account is concerned, there are some restriction. There are some charges on the deposit and withdrawn. Clear? तो करंट अकाउंट में अपन कभी भी कितने भी पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं कर सकते कि अपन जितने पैसे चाहे कभी भी जमा कराएं, कभी भी निकाल लें। ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो चार्जेस लगेंगे। क्लियर? तो करंट अकाउंट पे कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। और सेविंग बैंक अकाउंट में चार्जेज लगता है ज्यादा बार निकालने पर, तो वहां पर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, come to the question. April 1st, deposited in bank, opening a current account. There are two accounts, one is bank, another is cash. Cash is real, bank is person, bank is receiver, bank account debit to cash. What amount we have deposited to bank? 10,000. 10,000. Withdrawn from bank, reverse. Cash comes in, debit, bank is giver to bank, cash account debit to bank, amount rupees 5,000. Third, received a check from Ramesh, to whom goods sold for rupees 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment. Any discount which is allowed at the time of payment is called trade discount or cash discount. अरे मैं तो लिखा रखा है cash discount. Trade discount is allowed at the time of transaction, while cash discount is received or allowed at the time of payment. Clear? Then there are three accounts. Received a check not yet deposited to bank, because on April 7 it has given check deposited to bank on 7th April and check received on 5th April. Means check received but not yet deposited to bank. Then in place of bank we have to debit check in hand. There are three accounts. Check in hand, real account comes in debit, another account is discount. We are getting some less amount. It is our expense. 1% of 12,000, 1,200. Expense debit 1,200. We are getting 10,800. Check of rupees 10,800. And who is giver? Ramesh. Ramesh is to be credited. Full amount 12,000. देखो एक बार ये एंट्री क्लियर है क्या? पहले सबसे पहले तो लिखा है कि टोटल 12,000 रुपए लेना था, अपन ने 12,000 का गुड सेल किया लास्ट ईयर, अभी पैसा आ रहा है उससे हमारे पास 1% अपन कम ले रहे हैं। 12,000 का 1% 120 फिगर 11,880. 1% we are getting less, that is our expense, and nominal account rule says
Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Check in hand. Why check in hand account is debited? Yes, check is not deposited to the bank. Next, on April 7, that check deposited to bank. This time, bank is receiver bank account debit. Check goes out to check in hand. What is the amount of check? 11,880. 11,880. Is it clear? Ramesh check dishonored and rupees 20 paid as bank charges. अब रमेश का चेक डिसऑनर हो गया, वापस लौटाएंगे चेक रमेश को. रमेश इज रिसीवर. इस एक, दो और तीन. रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट. Earlier, discount was allowed 120. Now it is to be disallowed. जो पहले अलाउ किया था उसको डिसअलाउ करना है क्रेडिट, तो 120 तो वापस. अब 11,880 ये तो चेक का अमाउंट प्लस बैंक ने 20 रुपए बैंक चार्जेज भी दिया. बैंक चार्जेज इज एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस और फॉर द रमेश. ये 20 रुपए जो बैंक चार्जेस के लगे हैं ये किससे लेने हैं अपन को? अरे बैंक ने तो ले लिया हमारे अकाउंट से. ये चार्ज किससे करेंगे? ये किसकी गलती से लगा बैंक चार्जेस? तो ये अपन को रमेश से रिकवर करना है. ये पैसे अपन को रमेश से लेना है. ठीक, तो बैंक ने अपने अकाउंट से निकाल लिए 11,880 का चेक का अमाउंट उल्टा कर दिया प्लस 20 रुपए, तो टोटल हो गया 11,900 और टोटल हो गया 12,020. क्लियर है क्या? देखो पहले क्या हमारा एक्सपेंस छोड़िए, अगर ये बैंक चार्जेज हमारा एक्सपेंस होता तो हम एंट्री करते बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. देखो दो एंट्रियों से बन रहा है. अगर केवल रमेश वाली एंट्री होती तो पहले अपन एंट्री करते रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक 11,880 120 ये 12,000. अब अपने से बैंक चार्ज ले लिया बैंक ने, तो अपन एंट्री करते हैं बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 रुपीज 20 रुपीज. और ये बैंक चार्जेज किससे लेना है? रमेश से. तो ये रमेश के अकाउंट को फिर डेबिट कर दो. तो एंट्री करते हैं अपन रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेज 20 और 20. इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये 20 यहां से कट गया, बैंक चार्जेज और इसमें 20 हो गया और बैंक में हो गया प्लस 20. मैंने इन दोनों एंट्रियों को मिलाकर एक एंट्री बनाई. देखो क्लियर है क्या?
कौन से वाली? मैंने ये बताई कि ये दो एंट्रियों से मिलके अपन ने ये एंट्री बनाई है। सबसे पहले अगर चेक डिसऑनर होता, बैंक चार्जेस नहीं लगता, तो अपन क्या करते हैं? रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, जो पहले अलाउ किया था डेबिट करके, उसको डिसअलाउ करना था क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट और टू बैंक, ये 20 रुपए अभी नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो ये एंट्री करते हैं अपन। अब 20 रुपए बैंक चार्जेस भी लग गया, तो बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 2020। अब ये बैंक चार्जेज अपना एक्सपेंस है या आपको रमेश से लेना है? हैं भाई, हमारा एक्सपेंस तब होता है जब हमारा कोई काम किया हो बैंक ने, हमें पैसे देने। ये किसकी गलती से लग रहा है बैंक चार्जेज? तो ये पैसा रमेश से लेना है अपन को। भाई कोई खर्चा किया मुझे और मैंने कोई खर्चा किया, ये पैसा मुझे राजेश से लेना है, तो खर्चा किसका है? ये राजेश का हुआ ना, मुझे तो उससे रिकवर करना है। तो मुझे भी किससे लेना है? रमेश से। तो मैंने अगली एंट्री में रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस कर दिया। यानी इनडायरेक्टली अपन ऐसा माने कि अपन ने रमेश की तरफ से बैंक चार्जेस पे कर दिया 20 रुपए। तो अपन ने एंट्री की रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस क्रेडिट, तो बैंक चार्जेस का अकाउंट तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? रमेश को डेबिट कर दिया 20, तो अपन ने इसको पहले से डेबिट कर रखा 12,000 से, डेबिट 20 से और कर दिया 12,020 हो गया। और बैंक को पहले से क्रेडिट कर रहा है 11,80, 20 से और क्रेडिट करना, ये और जोड़ दिया अपन ने। तो ये एंट्री बन गई रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। देखो क्लियर है? करें आगे? ये हो गया पहले सबका। अरे आवाज आ रही है सबको? अब देखो अगला अगला ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या लिखा है? रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट पेइंग रुपीज 12,080 इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। 60 रुपए इंटरेस्ट भी दे रहा है। 12,020 तो पहले से मांगते हैं उससे, 60 रुपए इंटरेस्ट के भी दे रहा है, तो कुल कितने मिल रहे हैं? 12,080 रुपए। ही इज पेइंग रुपीज 12,080 बाई चेक। अब पहले तो 60 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करना है उससे, तो इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो एंट्री हो गई रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 60 और 60। अभी तो अपन ने लगाया नहीं इंटरेस्ट, लगाएंगे तभी तो कोई पे करेगा। अपन गुड्स सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, बिना सेल किए तो अपन एंट्री नहीं कर सकते कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश या कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। तो पहले अपन को इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री करना है, यानी रमेश को डेटर बनाना है। वी हैव मेड द डेटर फॉर ₹60 टू द रमेश। मैंने कि इससे 7 रुपए अपन को ब्याज के भी लेने हैं और वो दे भी रहा है, तो मैंने ये कहा कि तो करें, उसको डेटर बनाएं। डेटर का मतलब जिससे अपन को पैसा लेना है। ठीक, तो पहले अपन ने उसको डेटर बनाया, डेटर बनाने के लिए उसको डेबिट किया, तो रमेश अकाउंट डेबिट बिकॉज इज नाउ डेटर फॉर ₹60 और 60 मोर। इंटरेस्ट आवर इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो एंट्री हो गई रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब रमेश से कितना रुपए लेना रह गया? पहले अपन ने डेबिट कितना कर रखा है? 12,020। अब 60 से और डेबिट कर दिया, तो टोटल डेबिट कितना हो गया? 12,080।
अब इस अमाउंट को लेने की एंट्री और चेक दे रहा है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सेम डे डिपॉजिटेड टू बैंक। अपने पास क्वेश्चन में कहीं हिंट नहीं है इसके बाद कि चेक कभी आपने बाद में जमा कराया। तो बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश गिवर टू रमेश 12,080 and 12,080। क्लियर है सबका? नेक्स्ट, बैंक कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा ए कस्टमर इन द बैंक। एक कस्टमर है जिसका नाम है राजा, उसने डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया ऑनलाइन। अब इसमें कौन रिसीवर है और कौन गिवर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, राजा इज गिवर, तो बैंक रिसीवर डेबिट, राजा गिवर क्रेडिट, एंड अमाउंट रुपीज 8,000। नेक्स्ट, बैंक ड्राफ्ट बॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स 5,000। दो एंट्री अलग अलग है। एक तो 5,000 का पेमेंट अपन बैंक के थ्रू कर रहे हैं, रामलाल वो है, लाल एंड सन्स इज रिसीवर, बैंक इज गिवर। मैसर्स लाल एंड सन्स डेबिट रिसीवर, बैंक इज गिवर टू बैंक 5,000 and 5,000। अब रिमेनिंग पार्ट, व्हाट इज गिवन इन रिमेनिंग पार्ट? ₹700 बैंक चार्जेस, और बैंक ने 700 रुपए अपनी सर्विसेज के लिए हमसे। नाउ देर आर टू अकाउंट, बैंक चार्जेज एंड बैंक expense debit, bank is giver, our bank account is giver for ₹700 and 700। बोलो। अपन ने, जैसे अपन चेक से पेमेंट करते हैं वैसे अपन ने बैंक ड्राफ्ट से चेक किया। बैंक ड्राफ्ट का पेमेंट जैसे निकाल के एक चेक जैसा कुछ बना दिया, उसको अपन कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड, हाँ बोलो। क्या क्या कह रहे हो? मैं उसी की तो कह रहा हूँ रामलाल। ये तो बाद वाला है, 30 वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाला ही कर रहा हूँ अभी, 23 वाला ही। बैंक ड्राफ्ट बॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स 5,000। ये पहली एंट्री 5,000 की, ये 700 रुपए की एंट्री, उसी के आगे दे रखा बैंक चार्जेस 700। अभी बैंक चार्जेस और एक एंट्री के बाद। अब लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड विद द बैंक 3,800। अब आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कागज, लेटर होता है। उस लेटर पर देने वाला ये लिखता है, जिसको अपन ने जो गुड सेल करता है वो ये लिख के देता है कि ये 4,000 रुपए तुम मेरे को देना 1 महीने बाद, या फिर मैं जिसका नाम बोल दूं तुम्हें, लिख दूं तुम्हें, उसको पे कर देना। और जिसको जो पे करता है वो उस पर अपना साइन कर देता है, यानी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है मैं आपको 1 महीने बाद ये 5,000 रुपए दूंगा, ये आपको दूंगा, या आप जिसका भी ऑर्डर कर दोगे उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे पूरा चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब पेमेंट तो मिलेगा 1 महीने बाद,
अगर आपको अर्जेंट चाहिए पैसे तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक से अर्जेंटली ले लेते हैं पैसे। तो बैंक क्या करता है, अपना ब्याज काट लेता है। मान लो अपन को 5,000 रुपए का पेमेंट 1 महीने बाद मिलना है और बैंक अपन को आज ही कर दे, तो बैंक अपना 1 महीने का जो इंटरेस्ट काटता है उसको अपन कहते हैं डिस्काउंट चार्ज। ये समझ। हेलो भैया, अभी तो ऑफिस नहीं खुला यार। क्या इमरजेंसी हो गई? हाँ। हाँ, तो गलत हो गया तो गलत अकाउंट में चल जाएंगे पैसे। नहीं, अरे आपने तो गलत क्यों डाला तो? तो वापस सही करो उसको खोल के। हाँ, हो जाएगा। क्लियर? तो हमें अर्जेंसी होती है, हम जल्दी पैसा लेना चाहते हैं। यस, आर यू लिसनिंग? तो हमें अर्जेंट चाहिए, अर्जेंसी होती है पैसे की, तो अपना ब्याज कटवा कर हम बाकी पैसे ले लेते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, 1 महीने बाद देने थे 4,000, इमीडिएट ले लिया अपन ने 3,800। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट कराने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक हमारे अकाउंट में डाल देता है। आवर बैंक अकाउंट इज रिसीवर, जितना कम मिलेगा वो डिस्काउंट चार्ज, नॉट अलाउड, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है उसके लिए अपन जिसका अमाउंट अपन को मिलना होता है वो होता है बिल्स रिसीवेबल। ये बिल है 200 और अपने अकाउंट में जा कितना रहा, 3,800। आवर बैंक अकाउंट इज रिसीवर ऑफ रुपीज 3,800 and 200 rupees our expense, it is to be debited. BR is real account, paper, that paper is to be sent to the बैंक। क्लियर है क्या ये बात? वो मैंने कहा था ना, वो एक पेपर है जिसकी बात की अपन ने कि एक पेपर है, वो पेपर अपन बैंक को दे काट के अपने अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो अपना अकाउंट तो रिसीवर हो गया,